ने बताया ना, बादशाह अकबर ने बेटा होने के बाद इस जगह को बनाया दूसरी राजधानी और पूरा किला बनाया 12 साल के अंदर। तो ये सीकरी है। हाँ, ये पूरा पैलेस है जहाँ वो रहते थे अपनी फैमिली को लेकर। হ্যালো বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তোমরা খুব খুব ভালো আছো। ভালো থাকা আমার ভিডিও দেখতে থাকো। দেখো আজকে তারপরের দিন, মানে আজকে 9 তারিখ 9 নভেম্বর। এখন বাজে 8টা 46। আমরা এখন যাব ফতেপুর সিকরি। ফতেপুর সিকরি মোগলদের যে রাজধানী ছিল সেই রাজধানী দেখব, আকবরের সৃষ্টি ফতেপুর সিকরি সেটাই আমরা দেখব। দেখো এখন যাচ্ছি ফতেপুর সিকরি। ফতেপুর সিকরি অনেক অনেক ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসগুলো জানবে, কী করে যাবে, কেমনভাবে যাবে সেটা নিশ্চয়ই জানতে পারবে। আর আমি যে গাড়িতে যাচ্ছি তার ফোন নম্বর ডেসক্রিপশন দিয়ে বক্সে দেওয়া থাকবে, তোমরা দেখে নিও। 2000 টাকা নিচ্ছে আমরা ফতেপুর সিকরি ঘোরাবে, আর এখানে নিয়ে আসবে 2000 টাকা করে নিচ্ছে। হ্যাঁ, দেখছো আমি এখন চলে এসেছি দাদার গাড়িতে, দেখতে পাচ্ছ দাদা গাড়ি চালাচ্ছে। হ্যাঁ, গাড়িতে যাচ্ছি এখন ফতেপুর সিটি যাচ্ছি। এখানে আমার যে কালকে অটো দাদা ছিল উনি করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, 2000 টাকা নিচ্ছেন গাড়িতে। ভালোই ফতেপুর সিটি করে নিয়ে চলে আসবেন, ঠিক আছে। আর আমি ডেসক্রিপশন বক্সে তো দাদার নম্বর দিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নিতে পারবে, ঠিক আছে। এবার ফতেপুর সিটিতে কী কী দেখা যায় সেটা তোমাদেরকে দেখাবো, তোমরা থাকো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন আমরা যাচ্ছি ফতেপুর সিকরিতে। তার আগে বাদিকে দেখতে পেলে এটা হলো আগ্রার ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট, ঠিক আছে। আমাদের এই দাদা, হ্যাঁ এই তো। Hi, my name is Vinod Kumar. I am driver is Agra. अभी हम सर के साथ फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी यहाँ से 40 किलोमीटर है। ये हमारा जयपुर हाईवे है, आगरा टू जयपुर हाईवे ऑन द वे आएगा फतेहपुर सीकरी। नमस्ते। ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা, তোমাদের এই দাদার নম্বর আমি দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশন বক্সে, এখানে লিখে দেবো, তোমরা দেখে নিও। যদি আগ্রায় আসো তোমরা এই দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে পারো, ঠিক আছে। ঠিকঠাকই ঘোরাবে সব নিশ্চয়ই, ঠিক আছে। তা দেখো আর দেখতে থাকো। দেখছো, এই দেখো লেখা আছে বা দেখে হলো ফতেপুর সিকরি। দেখছো ফতেপুর আমরা সিকরি পৌঁছে গেছি। ফতেপুর সিকরি ঢুকার আগেই প্রথম একটা গেট পড়ে, সেই গেটের নাম হলো আগ্রা গেট। তোমাদেরকে ব্যাক করে থাকে, এই গেটটা হলো আগ্রা গেট। এটা ফতেপুর সিকরি ঢুকার ঠিক আগে পড়বে প্রথম আগ্রা গেট। এই দেখতে পাচ্ছ, এই গেটটার নাম হলো আগ্রা গেট, দেখতে পাচ্ছ ওটা আগ্রা গেট। দেখছো আমি ফতেপুর সিকরি চলে এসেছি। এখন পার্কিংয়ে আমাদের গাড়িটা থাকবে। পার্কিং থেকে আমাদের গাড়ি নিতে হবে, সিএনজি গাড়ি নিতে হবে, ওই গাড়িতে যেতে হবে। কিন্তু ওই গাড়ি তো অ্যালাউ নেই, সেই জন্য এখানেই পার্কিংয়ে আমাদের গাড়িটা পার্ক করতে হবে। যাক পার্ক করছি, দেখতে পাচ্ছ এই যে এখন পার্কিংয়ে গুলশান পার্কিং লট, গুলিস্তান পার্কিং লট 1 কিলোমিটার দূর, সেটা যেতে হবে। এখানে এই পার্কিং লটে পার্ক করে দেওয়া হলো, 100 টাকা নিল পার্কিং চার্জ। এখন আমি যাব বাসে করে। না দেখছো আমরা রয়েছি এখন পার্কিং লটে। এখান থেকে ব্যাটারি চালিত গাড়ি ধরতে হবে। দেখছো সামনে কোথায় ব্যাটারি চালিত গাড়ি আছে, দেখি। উঠে গেছি, বাসের ভাড়া নিচ্ছে যাতায়াতে 30 টাকা, যা আসা মিলে 30 টাকা টিকিট কেটে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছি টিকিটটা কেটে নিয়েছি। আর এখানে টিকিট কেটে নিয়েছে, 30 টাকা নিচ্ছে। এখন যাবো, জাস্ট আগের বাসটা পেলাম না, আগের বাসটা ভরে গেছিলো, এই বাসটা এখন মোটামুটি মনে হচ্ছে ভরে যাবে খুব শীঘ্রই। চলো ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে, ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে আবার তোমাদের সঙ্গে। আর তার মধ্যে এই ঠান্ডা লেগে গেছে, এসি হাওয়া আছে, ট্রেনের মধ্যে ঠান্ডা লেগে গেছে, ঠান্ডার মধ্যে রয়েছে। इस जगह को देखने जा रहे हैं, इसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं। और फतेहपुर सीकरी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सीकरी है जो कि बादशाह अकबर का रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ महल बना हुआ है। उसके बाद फतेहपुर अलग है, वहाँ उनके गुरुजी की दरगाह है। 500 बरस सलीम चिश्ती बाबा, बिल्कुल 500 बरस पहले यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं होता था, ये पूरा पहाड़ था। और इस पहाड़ को अरावली का पहाड़ कहा जाता था, अरावली। हाँ, और इस पहाड़ पर एक फ़कीर रहते थे जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती था, जो लोगों के लिए दुआएं किया करते थे। और बहुत सारे लोग आते थे उनसे दुआएं कराने के लिए।
और वो उनके लिए दुआएं करते क्योंकि वो फ़कीर लोग थे। और बादशाह अकबर मुग़लों में तीसरे राजा थे जिनकी 3 रानियां थीं अलग अलग धर्मों से, लेकिन तीनों रानियों से उन्हें कोई भी बेटा नहीं था। उन्होंने इस जगह को दूसरी राजधानी बनाया, यानी आगरा फोर्ट को छोड़ दिया और यहाँ रहना शुरू किया और पूरा किला बनाया 12 साल के अंदर। 1570 में इसका शुरुआत किया गया और 1582 में इसको बनाकर तैयार किया गया, यानी 12 साल लगे पूरे किले को बनाने में। और दोनों जगह बनाई गई, अलग अलग भागों में बांटा गया। सीकरी और फतेहपुर को दोनों थोड़ी दूरी पर बनाया गया है। तो सीकरी तो उनके रहने के लिए बनाया, वहाँ उनकी 3 रानियाँ रहती थी। पहली रानी का नाम था मुस्लिम्स थी जिनका नाम था रुकैया बेगम, और दूसरी रानी थी क्रिश्चियन जिनका नाम था मारिया, और तीसरी रानी थी हिंदू रानी जिनका नाम था जोधाबाई। तो जोधाबाई राजस्थान जयपुर की रहने वाली थी, राजा मानसिंह की बहन। वो राजपूत परिवार से बिलोंग करती थी। हाँ, राजा मानसिंह की बहन थी और राजा भारमल उनके पापा जी का नाम था। वो वहाँ के राजा थे। सबसे पहले मुगलों में बाबर आए थे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद उनके बेटे सलीम, सलीम का दूसरा नाम जहांगीर है। पहला नाम सलीम है, दूसरा नाम जहांगीर है उसका। जहांगीर के मायने होते हैं जहान का बादशाह, ये एक जिम्मेदाराना नाम है। और जहांगीर के बेटे थे शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया। शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। और इनमें से बादशाह अकबर इकलौते ऐसे राजा रहे हैं जो सारे धर्मों का बखूबी सम्मान करते थे। চলে এসেছি আমি ফতেপুর সিক্রিতে, দেখতে পাচ্ছ এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা দেখো দিমানে আম। আর রাজা আকবর ওই জায়গায় বসতেন তার 9 মন্ত্রীকে নিয়ে, আর এই সব জায়গায় জনগণ সাধারণ প্রজারা বসতেন। আর এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছ একটা হাতি থাকতো, এটা তিনি রাজপুতদের কাছ থেকে পেয়েছি। যোধাবাইকে বিয়ে করার পর রাজপুতদের মানে দহেজ বলতে যেটা দেনা পাওনা বলতো সেটাই তখনকার দিনে ছিল। আর একটা হাতি পেয়েছিল, হাতিটা ওখানে বাঁধা থাকতো। আর হাতি মানে যারা অন্যায় করতো, অপরাধ করতো, তাদের ওই হাতির পায়ের তলায় পিষিয়ে মেরে ফেলা হতো। যাক এটা দেখো, ने बताया ना बादशाह अकबर ने बेटा होने के बाद इस जगह को बनाया दूसरी राजधानी और पूरा किला बनाया 12 साल के अंदर। तो ये सीकरी है। हाँ, ये पूरा पैलेस है जहाँ वो रहते थे अपनी फैमिली को लेकर। और लास्ट में जो आप देखेंगे ना वहाँ पर वाइट डोम्स नज़र आएंगे, वो फतेहपुर है। इसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। तो वहाँ गुरुजी की दरगाह है जिन्होंने दुआ की थी, तब उन्हें बेटा हुआ जोधाबाई से, और ये अपने रहने के लिए बनाया, इसे कहते हैं सीकरी। सो दिस इज़ द प्राइवेट रेसिडेंशियल एरिया ऑफ अकबर। ये सीकरी का पहला स्पॉट है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। इसे दीवाने आम कहते हैं, एक तरीके से जनता दरबार। और उस ज़माने में उनके पास एक हाथी था जिसका नाम था हिरन, वो यहाँ बांध दिया जाता था रिंग। आप देखिए ज़रा, पत्थर का रिंग बना हुआ है घास में। वो हिरन बादशाह अकबर को महारानी जोधाबाई के विवाह के दौरान गिफ्ट किया गया था बतौर दहेज राजपूत परिवार की तरफ से। और उसका इस्तेमाल बादशाह अकबर इस कोर्ट में करते थे। और जो भी क्रिमिनल्स होते थे ना, उन्हें वहाँ हाथी से कुचल के मरवाया जाता था उनके आदेश के बाद। इट मीन्स एक को यहाँ सज़ा मिलती थी तो 1000 लोगों को संदेश मिलता था कि बुरे काम की बुरी सज़ा है। लोग डरते थे और धीरे धीरे क्राइम रेटिंग्स कम होने लगा। ये है धीरे राही। আর তোমরা দেখছো এই থাম্বাটা দেখে কি বুঝছো? এই থাম্বাটার মাধ্যমে রাজা আকবর দিন এলাহি ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই থাম্বার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মেলবন্ধন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ এই যে। तो बादशाह अकबर यहाँ से जाते थे चढ़कर, ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। तो इस पिलर के ऊपर बैठते थे बीचों बीच। और उनके जो 9 मंत्री थे ना, उनके 9 मंत्री इस तरह से बालकनी में बैठा करते थे चारों तरफ। और फिर बादशाह अकबर उनसे एक एक करके मशवरा लिया करते। और बादशाह अकबर मशवरा लेने के बाद उस मशवरे को बतौर आदेश कोर्ट में जाकर सुनाते थे सभी के सामने। और जो भी क्रिमिनल्स होते थे उन्हें वहाँ हाथी से कुचल के मरवाया जाता था। ये जो पिलर है, इस पिलर को कहते हैं द पिलर ऑफ जस्टिस, न्याय का खंबा। क्योंकि मैंने बताया था ना दीन इलाही धर्म की शुरुआत इसी पिलर के ऊपर की गई थी। और उसकी याद में ये धर्मों से रिलेटेड आर्किटेक्चरों को यहाँ पर कार्व करके बनाया है। तो नीचे आप देखेंगे ये मुगल आर्किटेक्चर है,
इसके ऊपर आप आएंगे, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। ऊपर आप जाएंगे, क्रॉस बना हुआ है, ये कैथोलिक है। इसके ऊपर जाएंगे, वो इस्लामिक डोम्स बने हुए हैं एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड। उसके ऊपर जिगजैग बना है ना, वो पर्शियन है। पिलर के अंदर देखिए आप जरा गौर से, ये जो झुमके टाइप के लटके हैं ना, ये बुद्धिस्ट है और ऊपर जैन धर्म का है। सारे धर्मों से रिलेटेड आर्किटेक्चरों को यहाँ पर कार्व करके इसमें सजाया गया है बतौर यादगार के दीन इलाही धर्म। तो ये है दीन इलाही धर्म की यादगार के तौर पर, इसे कहते हैं न्याय का मंदिर, दीवाने खास। तो ये महल अंदर से एक मंजिल है और बाहर से ये 2 मंजिल है। ये इस महल की खूबसूरती है, इसे दीवाने खास कहा जाता है। हाँ, वो दीवाने आम, यानी वो आवाम के लिए था और ये बादशाह अकबर और उनके 9 मंत्रियों के लिए, और ये खास लोग। तो ये है प्राइवेट कॉन्फ्रेंस वाला पड़ता। अभी हम चलेंगे पंचमहल देखने के लिए। पंचमहल बड़ा सुमीलिए, जरा नीचे देखकर आना सब लोग, आइए जरा। এবার এটা হলো দিওয়ানি খাস, এটা দেখতে পাচ্ছ। আর যাচ্ছি এখন। नहीं जाया करती थी जोधाबाई। जोधाबाई। देखिए ये है पंचमहल, क्योंकि ये 176 पिलर पे सपोर्ट करके 5 मंजिल बनाया गया है। तो बादशाह अकबर अक्सर महारानी जोधाबाई को लेकर जाते थे ऊपर सनराइज और सनसेट देखने के लिए, और वहीं से पूरे शहर का नज़ारा करते थे और वो ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। ये महल चाइनीज आर्किटेक्चर में बनाया है, पगोडा स्टाइल में, क्योंकि बादशाह अकबर ने सारे धर्मों से रिलेटेड आर्किटेक्चरों का इस महल में इस्तेमाल किया है। तो ये उनमें से एक है जिसे पंचमहल कहते हैं। इस महल को जोधाबाई के लिए बनाया था बतौर एंटरटेनमेंट के लिए, उनके रहने के लिए अलग बनाया है, जो मैं आपको दिखाऊंगा जोधाबाई का महल। और ये है बाहर, यहाँ से बादशाह अकबर जाते थे और वहाँ बैठकर आवाम को एड्रेस करते थे। अभी हम चलेंगे। দেখতে পাচ্ছ এইটা হলো 5 মহল। फिर वापस लेके आते हैं, बस पे ले जाएंगे आपको। पहले यहाँ उड़ाएंगे, फिर फतेहपुर जाएंगे, फिर बस पे ले जाएंगे। ये जो महल है ना सामने वाला, इसे कहते हैं ख्वाबगाह। इट मीन्स द ड्रीम हाउस ऑफ अकबर, बादशाह अकबर के सपनों का महल। तो ये बादशाह अकबर ने अपने लिए बनाया था रहने के लिए। और वो जो कोने पर महल देख रहे हैं ना आप लोग, इस कोने पर, वो उनकी मुस्लिम रानी का है। मुस्लिम रानी उनकी पहली रानी थी, जिनका नाम था रुकैया बेगम। तो ये महल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होकर वो अकबर के महल से कनेक्टेड था, टूट गया है बीच में से। शीश महल, हाँ, इसके नहीं, वो और ये एक था, पूरा एक है सदी वहाँ तक। ये पूरा कनेक्टेड था एक दूसरे से, टूट गया है पुराना होने की वजह से। तो इसे शीश महल कहा जाता था। इसके अंदर शीशे लगे होते थे उस जमाने में। और बीच में, इन दोनों महलों के बीच में आप तालाब देख रहे हैं ना, तालाब, इसे कहते हैं अनूप तालाब। तानसेन के गाने की जगह है वो। तानसेन बीच में बैठकर संगीत गाते थे, और जब वो गाते थे ना मेघ मल्हार, দেখছো এখানে তানসেন বসে বসে সঙ্গীত চর্চা করতেন। দেখতে পাচ্ছ ওই যে এই জায়গাটা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ, এটা আকবরের ঘর। আর এটা শীষমহল, এই যে জোড়া ছিল এখান থেকে পুরো শীষমহল। আকবরের প্রথম স্ত্রী শীষমহল থাকতেন। এই যে এটা হলো শীষমহল।
দেখছো পুকুরের মাঝখানে যে বসার জায়গাটা আছে ওখানে তানসেন তার সঙ্গীত চর্চা করতেন। আর এই দেখো যাচ্ছি আমি এখন, দেখছো এখন আমি যাচ্ছি শীষমহলের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু এটা ভেঙে গেছে। এখানে কাঁচ বসানো ছিল আগে, কিন্তু এখন আর নেই। দেখতে পাচ্ছ এটা হ্যাঁ, দেখছো এটা আকবরের প্রথমা স্ত্রী রোকেয়া বেগমের ঘর। महिमा चौधरी वो पानी के बीच में नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। वो बाहर जाने का रास्ता, वो यहाँ खाना खाते थे, यहाँ टेबल कुर्सियाँ नहीं हाउस, तो ये मरियम के लिए था, उनकी क्रिश्चियन रानी। और वो है जोधाबाई का महल सबसे बड़ा। और महारानी जोधाबाई प्योर वेजिटेरियन थी, इसलिए उनके लिए वेज किचन यहाँ बनाया है। ये किचन है उनका किचन এটা। और ये नॉनवेज रसोई है वहाँ कोने पर। और जोधाबाई अपने महल से आती थी और यहाँ से चढ़ के जाती थी इन मुगलिया सीढ़ियों से पंचमहल पर। सनराइज ये राजस्थानी, हाँ हाँ राजस्थानी आर्किटेक्चर है ये। आप लोग आइए जोधाबाई का महल। ये क्या है? बोल ये रसोई घर है, जोधा का रसोई। जोधा का रसोई घर। जोधाबाई का खाना यहाँ बनता था, वो प्योर वेजिटेरियन थी। इसको कहते हैं हरमसरा कार्यालय। দেখছো এখানে যোধাবাইয়ের নিরামিষ রান্না হতন। এটা হলো ঠিক আছে। अभी आप लोग अंदर चलेंगे, साथ में आ जाइए। আকবরের খ্রিস্টানদের জন্য যে চার্চ ছিল সেইটা এই হলো সেই চার্চ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। आप लोग देखिए, ये महल है जोधाबाई का, सबसे बड़ा और आलीशान। राइट में जो महल बना है ना, इसे कहते हैं समर पैलेस, जहाँ वो गर्मियों में रहा करती थी। और ये है विंटर पैलेस, जहाँ वो सर्दियों में रहा करती थी। और ये उनका मंदिर है बीच में, भगवान सर्दियों के लिए, हाँ विंटर वाला, विंटर समर। और वो सामने उनका मंदिर है, और बीच में तुलसी का पौधा लगाया गया था जल चढ़ाने के लिए। और उस जमाने में यहाँ पुरुषों का आना मना था, तो वो जो रूम्स बने हैं ना, चारों रूम बतौर सिक्योरिटी के तौर पर बनाए थे। वहाँ किन्नर लोग रहते थे, किन्नर लोग। और 16 दासियां रहती थी इस महल में, उनकी देखरेख के लिए, मेहमान नवाजी की। ये सबसे बड़ा महल जोधाबाई का है। और यहाँ से ये सीकरी आपका पूरा हो गया है। हाँ, अभी आप लोग चलेगा फतेहपुर देखने के लिए। দেখছো এটা যোধাবাইয়ের শীতকালের জন্য ঘর ছিল, আর এইটা ছিল গরমকালের জন্য। আর ওইটা হলো কৃষ্ণ মন্দির, সামনে দেখতে পাচ্ছ কৃষ্ণ মন্দির, সামনে দেখতে পাচ্ছ একটা তুলসী গাছ তো এখন নেই, দেখ এখানে তুলসী গাছ ছিল। এটাই হলো ব্যাপার। এটা তো এখানে হলো এটা হলো শীতকালের জন্য ছিল, আর এটা হলো গরমকালের জন্য ছিল। আর এই ঘরগুলো, এখানে কিন্তু কোনো পুরুষ প্রবেশ করতে পারতো না, কোনো পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্নার মানে হিজড়ারা বা থাকতো এইখানে, সিকিউরিটি হিসেবে হিজড়া থাকতো এই ঘর। এই যে এইগুলো হিজড়ারা থাকতো, ঠিক আছে, সিকিউরিটি হিসেবে রানীর, তখনকার রানীর। কৃষ্ণ মন্দির আছে সামনে কৃষ্ণ মন্দিরটাকে ঘুরে আসি প্রথম। দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কৃষ্ণ মন্দিরের ভেতরটাও দেখাচ্ছি। ভাবতে পারছো এখানে আকবরের স্ত্রী যোধাবাই এই মহলে থাকতেন, এখানে আসতেন প্রতিদিন। মানে ভাবলেই কি মানে রোমাঞ্চকর মনে হয় সেই ব্যাপারটা। এখানে দেখছো এটা হলো কৃষ্ণ মন্দির, যোধাবাইয়ের কৃষ্ণ মন্দির। দেখছো এই যে এটা হলো কৃষ্ণ মন্দির ছিল তখনকার দিনে।
এইটা হলো গ্রীষ্মকালের জন্য ছিল তার, এই যে এখানে তুলসী গাছ ছিল, কিন্তু তুলসী গাছের থেকে এখন জবা গাছ আছে। এটা হলো গরমের জন্য রানীর জোড়াবাইয়ের ঘর। এখানে গরমকালে রানী থাকতেন, এই যে রানীর মহল গরমকালে। দেখছো, ও এইটা ঘর, এখানে থাকতেন, বুঝো এটা অন্দরমহল। এটা কি আছে, আমি সিগড়িটা ঘুরিয়ে দিলাম, কেমন হয়েছে বলো। এর পরের পর্বে তোমাদেরকে দেখাবো ফতেপুর, তা দেখো আর দেখতে থাকো। আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার সব করো আর দেখতে থাকো।